موبائل چوری کس نے کیا، کون ہے موبائل چوری کرنے والا اور ابھی تک کیا پتہ چلا ہے، یہ سب تفصیل بتاتے ہیں۔ ابو میرے گھر کیوں نہیں آتا؟ ابو گھر آ جائے گا، ابو آ جائے گا، آپ وہ اگر ہوگی تو دیکھا تھا ابو بنان تو ہے کہنا۔ اچھا کوئی نہیں ابو جان جو ہے نا سردار میری سونے میرے شہزادے آ گئے۔ ابو کو کیا ہوا؟ ابو کو کچھ نہیں ہوا، ابو جنت گئے ہیں۔ وہ بھی شاپروں سے نکال کے نا تو اس کو رکھنا ہے۔ اچھا چلو، ابو کی یاد آتی ہے، چلو کوئی نہیں، ابو آپ کو ابو کی یاد آتی ہے، ہم ہیں نا، امی ہے۔ مایا کی جو میری سویرے تیاری ہے نا میری گھر، آپ بھی جا رہی ہو؟ یہ ماسی بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے آج بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ دوستو ہمارا دوسرا ولاگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس نیک دعا کے ساتھ کہ جو میرے بہن بھائی، جو میرے دوست، جو میرے رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ جن پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور میرے سب دیکھنے والے بہن بھائیوں پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ دوستو ولاگ کر لیا سٹارٹ، آپ نے رہنا ساتھ، ویڈیو سکپ بالکل نہیں کرنی، ویڈیو فل واچ کرنی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا ہے۔ سب کا بے حد شکریہ، دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی بھائی اور بھابھی آئے تھے ہمارے ادھر ہمیں مطلب دلاسا دینے کہ ٹینشن نہ لو، رو نہیں، اور جو ہے نا باقی جو کام ہیں وہ اپنے کرو، سنبھالو، چینل بھی کا بھی نقصان ہو رہا ہے وہ بھی سیٹ کرو، اس کے اوپر بھی محنت کرو۔ تو بات ان کی بھی ٹھیک ہے لیکن بات میری بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی یک دم ایک ہی دم میں آپ بولو کہ یہ کام کر لو، ایسا ہو جائے، مطلب وہ ہوتا ہے کہ میں پہلے جیسا ایک دم ایک منٹ میں ہو جاؤں یا ایک دن میں ہو جاؤں، وہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے مطلب وہ سوچیں آ جاتی ہیں، اب ایک ہی گھر میں ایک ہی جگہ اسی جگہ، یا تو گھر چینج ہو، الگ جگہ پہ ہوں، مطلب ماحول کوئی چینج ہو، پھر بندہ ہو جاتا ہے۔ جیسا میں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں، آج میں نے ویڈیو بھی بنائی، میں نے کہا باہر کا تھوڑا سا ویڈیو وغیرہ بنائی، اور تو اپنے آپ کا مائنڈ فریش کرنے کے لیے تھوڑا ادھر ادھر کا میں نے کہا چلو کچھ ہو جائے، تو میں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں۔ باقی ہوتا ہے میں اپنی طرف سے کہ میں نہیں روتا، میں اپنے آپ کو اب فل کنٹرول کر رہا ہوں، اور باقی جو ہے نا امینہ اور امی سلمہ ان کو بھی میں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بھی بولوں کہ آپ نہ رویا کرو۔ اور وہ بتا رہے تھے تو چینل کا بھی اس طرح ہی ہے کہ چینل ہمارا جو ہے نا بہت سارا چینل کا نقصان ہوا ہے۔ میں نے کہا چینل کا نقصان ہوا ہے تو یہ دیکھیں کہ میرے لیے تو سب سے بڑا نقصان تو میرے ابو تھے نا، وہ چلے گئے، میرا وہ سب سے بڑا نقصان تھا۔ یہ چینل کا کیا ہے، چینل کا تو کوئی نہیں، یہ تو جتنا بھی بنے گا، مثال کے طور پر اگر میں مہینے کا 100 روپے کماتا تھا، میں وہاں 20 روپے کما لوں گا، تو یہ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ روٹین پہ آ جائیں گے۔ اور میں نے کہا بہن بھائی جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہیں، وہ میرا پھر بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے ویڈیو نہیں بھی جا رہی تھی تو میری پچھلی ویڈیو کو دیکھے جا رہے تھے، جو میری پچھلی بیک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی تھی وہ ان کو ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ 4-5 دن میری ویڈیو نہیں ہے، اور 5 دن نا آپ سب کی مہربانی ہے، آپ سب نے میری پچھلی ویڈیو دیکھتے رہے، اس سے یہ ہے کہ چینل میرا بالکل ڈیڈ نہیں ہوا، چینل بچ گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میری ویوز آ رہے ہیں مطلب کہ 15,000 12,000 10,000، تو پہلے اگر اس حساب سے آتے تو میرے اچھے خاصے ڈالر بنتے تھے، لیکن اب جو مطلب ہو رہا ہے تو ابھی میں نے ویڈیو یہ 2-3 ویڈیو جو میں نے بنائی ہے نا جب سے شروع کی ہے، ایک تو 23-24 ہزار ویوز آئے ہوئے تھے ویڈیو پہ، تو 23-24 ہزار ویوز پر مجھے صرف $3 ملے، مطلب اتنی 20,000 کراس کر کے بھی مجھے صرف $3 ملے۔ اس کے لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے اب جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، نہ ہی میں ویسے پہلے جھوٹ بولتا تھا، نہ ہی اب بولوں گا، مطلب اس طرح ہے۔ اور 15,000 12,000 ایسے ویوز آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ڈالر پھر بھی اسی طرح بن رہے ہیں، $2 $2.5 $3 2 2.5 3 اس طرح۔ تو آپ سب کی مہربانی ہے، آپ سب جو ہے نا ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ میں اب چھوٹی بنا رہا ہوں تاکہ آپ سب ویڈیو میری پوری دیکھا کریں، اس سے میرے وہ چینل کا امپریشن اور جو RPM CPM وہ سیٹ ہو جائے گا، دوبارہ سے ریکور ہو جائے گا۔ اگر اس طرح جیسے اسکپ کرتے رہتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرا RPM اور امپریشن میرا نہیں بڑھے گا، اور اتنی ویوز آنے پر دیکھنے والے تو یہی دیکھیں گے جو چینل والے ہیں، یوٹیوبر ہیں، وہ کہیں گے کہ الطاف کے اتنے ماشاءاللہ سے ویوز آ رہے ہیں، 15-20 ہزار 15,000 10,000 ایسے ویوز آ رہے ہیں، تو اس کی انکم بہت آئے گی، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ میں اس
इस चीज़ के लिए मैं आप सबको, अगर आप बोलो तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शॉट भी डाल दूंगा कि जो मेरी मतलब कि इतनी 20,000 24,000 व्यूज़ पे मुझे $3 मिले, 15,000 व्यूज़ 12,000 व्यूज़ पे $2 $2.5। इससे मतलब मेरा $100 भी मुश्किल वाली बात है कि $100 भी बने, क्योंकि अब डेट आज मेरे ख्याल 14-15 हो गई है, बाकी 15 दिन रहते हैं। तो 15 दिन में मुझे $100 मेरे बन जाए, मेरे लिए यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा 100 भी बन जाए इस महीने। तो पिछले जो महीने थे उनमें से तो माशाल्लाह बन जाते थे, घर का अखराजात चल जाते थे। तो इस महीने जो है ना वो कम हो रहे हैं। तो आप सब ने ना वीडियो को क्या करना है कि वीडियो फुल चला देनी है, मेरा एक दफ़ा चैनल का इंप्रेशन फिर से बढ़ा देना है। RPM CPM जो है वो मुश्किल से वो ख़राब हो गया है, समझें कि जब इतनी व्यूज़ आएँ, डॉलर 1-2 आएँ तो फिर दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने का कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, इतनी मेहनत भी करूँ। इस माहौल में जो मतलब टेंशन के माहौल में भी फिर वीडियो बनाऊं तो व्यूज़ आते नहीं हैं, व्यूज़ आते हैं डॉलर नहीं आते हैं, तो दुख होता है। तो आप सब ना वीडियो को पूरा चला दिया करें, आप सबकी मेहरबानी होगी। आप सब ने मेरे साथ बहुत साथ दिया है, बहुत सारी दुआएं दी हैं, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल की वीडियो जो भी हो ना उसको आप अभी सिर्फ ये ज़्यादा ना, सिर्फ 10 दिन के लिए इन वीडियो को जो है ना आप चला के रख दिया करें। वो वीडियो जो चलेगी मेरा RPM CPM जो होता है, जो डॉलर बनाते हैं वो वाला बन जाएगा, उससे फिर वो होगा मेरे अखराजात जितने हैं उतने मेरे फिर डॉलर बन जाएंगे। तो मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये आप सबकी यही मेरी तरफ से हेल्प होगी। ये मैं नहीं कहता कि हाँ जी मुझे मतलब होती हैं बातें, फिर कहते हैं लोग कि इस तरह, मतलब मैं वो नहीं जिक्र करता। बस अल्लाह साहब को खुश रखे। और अभी जो है ना यहाँ पे सलमा जो है ना ये देखें बिस्तरे वगैरह बना रही है, और मेरी मासी भी आ गई है। हो आई मासी? आ गई जो उधर से होके आ गए? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। एक मासी उत्थे टेक पई, अच्छा मैं आ गई। माया की जो मेरी सवेरे तैयारी है ना मेरी घर। तो आप भी जा रही हो? हाँ। ये मासी भी हमें छोड़ के जा रही है आज। नहीं, भाई मैं और इन्हें भाई छोड़ और दे, भाभी बस सीमा भी चली गई। मजबूरी बन गई है ना, कि मजबूरी है कि कम दे। अच्छा हाँ वो मासी कहती है कि मेरी मजबूरी ना होती, इसकी बेटी आई हुई है दूर से, उसका ID कार्ड बनाना है। तो इसके फूफो के ना वो लगेंगे, फिंगर लगेंगे। अच्छा तो ये कहती है उसकी अगर मजबूरी ना होती तो मुझे टेंशन नहीं थी पीछे के हैं मुझे संभालने वाले, मैं इधर रुक जाती। सही सही। तो बस उसकी ये मजबूरी बन गई है। लेकिन बाकी जो ये दो हैं, मेरी फूफो तो मेरी सोनी फूफो, मेरी सोनी फूफो, आप तो नहीं जाओगी ना? आप तो इधर हो ना? हाँ मैं किराया मैं दूंगा भी नहीं, अगर कोई देगा तो मैं उससे छीन लूंगा। मैं कहूँगा इसको किराया नहीं दो, ये हमारे घर रहे बस। मैंने कहा है नानी जान को कि आप हमारे अब्बू बैठे हैं, आप हमें छोड़ के नहीं जाओ। और बनिया हाँ वाला मैं वापस नहीं वाल सकती, अच्छा वाला चली है भुगता थे सब। हाँ आप कोशिश करें कि आप मेरे पास रह जाएं, जैसे मेरे अब्बू बैठे थे आप भी मेरे अब्बू हो, आप भी वैसी हो। तो आप इधर रह जाओ हमारे साथ, जो आप बोलोगी मैं वो दूंगा आपको। अब मैं पुत्र दी हालत तड़ी थी, हाँ वाला टेंशन घेन में दे वाला बीमार थी गया। अच्छा इतों ही फर्क का नहीं, उतों का ही नहीं। अच्छा मैं हूँ छुहार दिया हो दिया, क्या करूँ। मतलब वो जो है ना मेरी फूफो कहती है, हाँ जी आगे, मेरी फूफो कहती है कि मैं भी अपने बेटे को देख रहा हूँ, बेटे की मुझे मजबूरी है। मेरा बेटा फिर मुझे याद करता बीमार हो जाता है। हबीबुल्ला की अम्मी हैं, ये सगी अम्मी नहीं है, मतलब उनकी अब्बू की 2 शादियाँ थी ना, तो मेरी फूफो। और ये भी बता दूँ कि मेरे अब्बू वालों की ये अकलौती बहन है, छोटी छोटी यही एक बहन थी, बाकी सब भाई 3 भाई थे, 1 बहन थी। तीनों भाई चले गए, अब ये हमारा सरदार जो है ना सिर्फ एक ही है। तो हम ये हमारे घर हो तो मुझे अब रात भी मैं ऐसे बोल रहा था, मैंने कहा देखो फुप्पो खांसती है, सांस लेती है, बातें करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा अब्बू बैठा हुआ है। और मेरे फुप्पो जो है ना सेम मेरे अब्बू की शक्ल की, आंखें भी उसी तरह हैं, और उनकी तो सिर्फ दाढ़ी थी, ये दाढ़ी के बगैर है। अगर इनको दाढ़ी लगा दी जाए तो सेम मेरा अब्बू बन जाएंगी। तो इस तरह इनको रोकते हैं, लेकिन इनकी भी मजबूरी है। बस ये है कि हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, हर किसी के अपने बच्चे हैं, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जो होगा फिर। और यहाँ पर जो है ना बिस्तर वगैरह बना रहे हैं। बाकी हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, अब्बू की याद आती है। अब्बू की याद आती है? चलो कोई नहीं, आपको अब्बू की याद आती है, हम हैं ना, अम्मी है, दादी आपकी है ना, तो बस समझो वही आपका अब्बू है, दादी सब कुछ वही है।
تو सलमा सलाम दुआ कर लो, फिर वीडियो आगे दिखाएंगे, काम फिर होते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक है। जी। तो व्लॉग शुरू हो चुका है। अभी जो है ना ये बिस्तर वगैरह इधर बना दिए हैं और भी काम पड़े हैं, वो भी ये मरियम और सिद्रा भी पूछने आई हैं कि खाला हमें काम बताओ कोई है तो मिल के जो है ना वो काम वगैरह करते हैं। वो क्या ना खाने का पूछना था, खाना भी मैं खाया है असर के टाइम को, तो मैंने लेट ही अगर कोई सबसे- खाएगा तो लेट ही हाँ, खाएगा। पूछते हैं अगर कोई खा ऊपर वाले जो है ना वो पूछ के वो कहते हैं हम नहीं खाएंगे। अगर कोई खाएगा नहीं खाएंगे। तो फिर बनाते हैं, अगर कोई नहीं खाता तो फिर चाय बना लेंगे। खाना तो अभी अभी खाया है सब ने। हाँ बस पूछ लेंगे। मासी आपने तो नहीं खाया होगा खाना? नहीं, खाना के लिए बना लेंगे हम। ये दोपहर है, कुछ तो गए ना असलम वगैरह थोड़ा घना खाते। हाँ चलो मासी के लिए और फूफो से भी पूछ लेना, ये बुजुर्ग जो है ना इनसे अम्मी से भी पूछ लेना, अगर ये खाएं तो फिर इनके लिए बना लेना, बाकी तो नहीं खाते तो नहीं खाते। मुझे मैंने वो सुबह जो नाश्ता किया था उसके बाद मेरी पल्ला भी अभी तक भी मुझे मैदे में जलन हो रही है, दिल नहीं कर रहा खाने को, तो फिर बाद में देखेंगे। वो नाश्ता जो किया था ना मेरे लिए वही, वो भी ज़बरदस्ती अकबर भाई ने कहा कि बैठो इधर खाना खाओ, वो मैंने खाया तो सही लेकिन वो ज़्यादा जैसे खा लिया, पता नहीं क्या मैदा हीट अप हो गया है, तो वो देखेंगे फिर। चले वो सबसे पूछ लेते हैं, ठीक है तो फिर उतना मतलब ज्यादा नहीं बनाएंगे, फिर जितना लोग खाएंगे उनके लिए बना ठीक लेंगे। हो गया। बीबी ओ बीबी, बीबी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो सोना? सोना क्या कर रही हो? सोना नींद से उठ के आई है। अभी सोई हुई थी? हाँ, अच्छा। वो मैं ना ऊपर झाड़ू लगा रही थी तो बहुत रो रही थी। मौसन वाले अभी नहीं आए? नहीं, हाँ मौसन वाले गए हुए हैं मरियम की बेटी आयशा को छोड़ने, मौलवी और मौसन। और इधर से चाचो हुई है, कोई बुला रहा है। चले जी मैं देख लूँ, मेरे ख्याल कोई ताज़ियत वाले आए हैं। भाग रही हो? हाँ, ये कपड़े ऊपर पड़े थे वो लेने गई थी। अच्छा, वो आए थे अपना जो मुंशी मेरे साथ काम करते थे, हाँ सेल्समैन, हाँ कुछ इधर दुकान पे, वही आए थे ताज़ियत करने अब्बू का। और वो जो बंदा आया है ना उसकी खुद की भी अम्मी फौत हुई है उसी दिन मेरे ख्याल हुई है, या अब्बू के एक दिन बाद इसी तरह, मतलब उसकी भी अम्मी अभी फौत। वो आया कहता है कि मैं ना लेट हो गया, मेरी अम्मी खुद की फौत हो गई। मैंने कहा मैसेज मैंने देखा था, ग्रुप में आया हुआ था, वो हमारा ग्रुप है ना सारा सेल्समैन का, उसके अंदर। तो मैंने कहा मैंने देखा था, मैंने मैसेज भी किया था, मैंने खुद बताया था कि इकराम को मैंने बताया था, मैंने कहा कि ऐसे, मैंने कहा सबको तो पता है कि इसका खुद का फौत हो गया। तो बोला कि नहीं बस ये तो होता है नसीब में। वही आया था, एक और भी साथ था। हाँ, और वो ना जिन से वो हमने लिया था, वो जैकेटें ली थी, जैकेट जो बेचने वाली, हाँ वो बिकी तो नहीं, वैसी पड़ी हैं, थोड़ी सी बिकी हैं, लेकिन उनकी कॉल आई थी। वो मैंने स्टेटस लगाया था ना व्हाट्सएप पे, तो उसने देखा था, तो फिर वो कॉलें करते रहे, हमने कॉल नहीं उठाई, अपने हिसाब से थे कि दिल रोने लग जाता था, तो इसलिए फिर मैंने कॉल नहीं उठाई। वो आज फिर उसकी कॉल आई तो फिर मैंने बात की, वो ताज़ियत कर रही थी, उसकी अम्मी भी और वो भी कह रहा था कि अफसोस हुआ। मैंने कहा चलो, कहती कि मेरा नाम भी बोल देना सलमा को। मैंने कहा ठीक है बोल दूँगा। मैंने कहा ये तो है कि अब हमने सब्र, कहते सब्र, मैंने कहा सब्र तो अब सब्र ही है, और क्या कर सकते हैं। भाई भी बोलता है बस सब्र, मैंने कहा अब वो भी बोलते हैं कि सब्र करो, लेकिन सब्र तो कर रहे हैं, लेकिन कोई होता है ना एकदम में तो बंदा नहीं सेट हो जाता, थोड़ा टाइम लगेगा हमें स्टेबल होने में, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा हम सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये क्या ये कपड़े सारे ऊपर से ले आई हो, और वो जो अंदर वाला सब्ज़ी वगैरह वो कहाँ की? वो अभी रखी है, वो अभी शापरों से निकाल के ना हाँ तो उसको रखना है उधर। अच्छा चलो, ये इनको फिर रख दो इधर, ये इधर बेड पे रखने हैं। अभी रख देती हूँ, पहले वो सब्जी निकाल लूँ, हाँ उसके बाद फिर ये ना जिसके हैं जैसे वो अलमारियों में फिर रखने होते हैं ना इनको, इधर तो नहीं पड़े रहेंगे क्योंकि बच्चे फिर आपको पता है वो फिर
ख़राब कर देते हैं। पहले सब्ज़ी निकाल लो, उसके बाद फिर आके ना इसका वो करूँगी, इनको रखूँगी इधर अंदर। भाई यहाँ सब्जियाँ वैसी की वैसी, इनको यार वो करना है ना, इस हिसाब से रखो कि ये ख़राब ना हो। बाहर मैं कहता हूँ रखनी पड़ेंगी, अंदर रखोगी तो ये टेम्परेचर में वो फिर ख़राब न गल ना जाए। नहीं इधर भैया दरवाज़ा खुला होता है। हाँ इधर रखना है ना, इधर रखना है वो जो है सेटिंग ना, करके। हाँ सेटिंग करके। ये शापरू में निकाल के रख देंगे ना, फिर नहीं वो देखेंगे जो चीज़ जल्दी ख़राब होने वाली होंगी ना, पहले वो बना लेंगे। हाँ ठीक है, बस हाँ, इसी इस तरह। ये तरह देखो फिर अभी आलू भी इनके नहीं ऊपर खराब नमी, होते। ये शापर के ऊपर नमी आ गई है इनके ऊपर। हाँ यही अगर शापर में अभी रख देना ये गल जाएगा तो सुबह हाँ तक। सुबह तक फिर ये अभी निकाल के, इसलिए मैंने बर्तन सारे जो है ना वो ऊपर रख दिए हैं। जो ज़रूरत होंगे वो उठा के ना फिर धो के रख दे। ये सब्जी इधर रख देती हूँ मैं निकाल के। चलो जी सही है, ये कर लो सेटिंग आप फिर। हाँ मेरी अमीना सरदार, मेरी सोने, मेरे शहजादे आ अबू गए। को अबू को क्या हुआ? अबू को कुछ नहीं हुआ, अबू जन्नत गए हैं। वो अबू वाला शाम वाला वालों से हाँ शाम को आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला को सरप्राइज देना है ना। हाँ उसको सरप्राइज देंगे। हाँ क्या सरप्राइज देंगे? नवे कपड़े पाती के हाँ। मोबाइल के देना है। हाँ अबू को मोबाइल भी लेके देना है। अबू को जो जल्दो अबू को क्या? अबू तो बहुत हो गए ना। नहीं वो तो जन्नत में गए हैं। अबू बर्थडे देगा। हाँ अबे बर्थडे तो गए हैं। फल चल के ठीक है। हाँ फल चल का नहीं खाता अबू फूल नहीं खाता। वो फूल की खुशबू सूंघता है। अबू को बुखार नहीं आ जाता। अबू को बुखार नहीं। अब अबू पता है क्या, अबू बिल्कुल ठीक है, अबू को कुछ नहीं, अब बिल्कुल सेट हो गया है और चाचू के पास गया है, अबे बड्डे के पास। वो रात थे मैं अबू ने जिसने हालात डॉक्टर छोड़ देता उन्हें खाया पिया नहीं। अबू ने अपने दम दरो निकाल सकता। अपने हाथ से क्या मोबाइल आया है, जिसने भेजा है पैसे भेजे ने उन्हें। हाँ मोबाइल वो दे के गया है अबू। अबू ने बोला है वो मोबाइल जो है ना वो अम्मा को देना है, ठीक है। अबू वाला जो मोबाइल अबू दे के गया है वो अम्मा को देना है। और जो है ना बोला है कि अमीना जो है ना मेरी सरदार है, मेरी सोनी शहजादी अमीना है। जिसने बताया ना। हाँ अबू इसके अंदर फौत हो गए ना। नहीं गलत बोलते हैं, अबू फौत नहीं हुए, अबू तो जन्नत गए हैं। जिसने भाई मेरे प्यो अल्लाह ताला और अबू देवे और अबू ने। हाँ बस अबू वही है, उसके लिए दुआ करनी है कि अपने अबू को अल्लाह पाक खुश रखे। जिसने भाई ये एक भाई। हाँ अबू का कह रही है कि एक ही भाई बचा था, मतलब तीन भाई थे ना, दो भाई पहले चले गए, एक भाई बचा हुआ था वो भी गया, मतलब इस तरह। तो अबू के लिए यही बातें इसकी होती हैं ऐसे। जलेबी खाओ, वो मीठी मीठी जलेबी खा लो थोड़ी सी, ये अबू की दुआ की है। नहीं खाती। चलो आप अच्छा चलो, अभी आप मुझे बोल रही थी ना, किस चीज़ का बोल रही थी? क्या करूँ मैं? शेव बनवाऊँ अबू ने या ये शेव बनवाऊँ? जिसने अबू में घर क्यों नहीं आता? अबू घर आ जाएगा, अबू आ जाएगा। आप वो अगर रोएगी तो फिर मैं कॉल करूँगा, वो बोलेगा अमीना अगर रोएगी तो मैं नहीं आऊँगा। हाँ आपने रोना नहीं है, अगर रोती हो ना तो वो फिर अबू नाराज़ होता है, आपको पता है ना, अबू नाराज़ होता है, वो कहता है मैं फिर नहीं आऊँगा। वो फिर जन्नत गया है ना तो वो कहेगा मैं नहीं आता फिर। उसने अबू ने क्या है? अबू कुछ नहीं हुआ, अबू तो अब बिल्कुल ही ठीक हो गए हैं, उनको कुछ भी नहीं है। पहले फिर भी उनको बुखार आता था, लेकिन अब उनको कुछ भी नहीं होता, अब जन्नत में है ना। भाई अपने अल्लाह से जिसने ये अल्लाह से कबूल ना करे तो चलता कि ये तोड़ देगा। अल्लाह पाक कबूल ना करे तो अबू नहीं आएगा। नहीं अबू चल नहीं सकता अबू। हाँ अबू नहीं, अब अबू चल सकता है, अब तो भागता है। नहीं आता मेरे पास, मैं नलगाल नहीं कर सकता। आपके साथ बात भी करेगा, आपके साथ सब कुछ करेगा। मैं नहीं कर सकती बात, ये एक ढेर है मेरे को। अच्छा चलो ठीक हो गया मेरे सोने, जैसे आप बोलो वैसे ठीक है। इसने जिसने बताया हुआ उन्हें आप ये जिसने आप ये
देखा था पुंगनान तो है ही कहना। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। अब्बू जान जो है ना जन्नत गए हैं, फिर हम जो है ना उनको कॉल करेंगे, पूछेंगे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। जिसने अबू ने दिखा 4 पैसा सोता हुआ हाँ। कल था सोता दिखते थे आके अबू अलवात से क्या हुआ था वो अब्बू उस वक्त सोया हुआ था इसलिए नहीं बात कर रहा था, वो तो अब ठीक है ना। उस वक्त आपने बोला ना कि अब्बू बात करो, मुझसे बात करो, तो अब्बू उस वक्त वो सोए हुए थे, नींद। आपको पता है ना कि डॉक्टर ने दिया था गोलियां, वो सुकून में थे, नींद में थे। तो जैसे ही फिर उठे ना, हाँ खाओ, तो जैसे ही वो उठे ना, वो फिर अब उन्होंने मुझे कॉल की थी, बोला कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे हम सर्दियां हैं और कपड़े हम अंदर सोते हैं ऐसे। अच्छा बोला मैं जन्नत में हूँ, और जो है ना अमीना को बोलना कि उसको भी पूछना क्या चीज़ चाहिए, उसको लेके देना, ठीक है। जितने में अपने अबू ने इसे खाते दिता खड़ा दिता हुआ हाँ उन्हें अबू तो क्या आँखें टपाते से आँखें उस वक्त वो नींद में थे ना, इसलिए वो आँखें नहीं खोल रहे थे, वो नींद में सोए हुए थे। मौलवी ऐसे ना। हाँ अब्बू जान जो डॉक्टर ने दवाई दी थी, अब्बू जान सो गए थे ना। हाँ जी। हाँ उस वक्त सोए हुए थे, तो अमीना कहती आंखें नहीं खोल रहे थे। मैंने कहा वो उस वक्त गोलियां खा के सोए हुए थे। वो तो आपको पता है ना, जब गोलियां खाते हैं ना, वो दूसरी जो डॉक्टर ने दी थी, अब्बू सुकून में आ गए थे, सोए हुए थे। फिर मेरी बात हुई है उनसे, जिसे अबू ने आके अबू ने आँखी को क्या ऐसी आँखी को बीमार जाती है। नहीं आंखों को कुछ नहीं था, बस वो सोए हुए थे ना इसलिए। जिसने अबू ने ये पहले तो ठीक का लेंदा रह गए, हाँ। मेरे को देना आ गया माँ पानी दे यार। हाँ पहले बुलाता था आपको, कहती है कि अब्बू तो पहले ठीक था ना, मुझे बुलाता था, कहता था पानी दे, मैं पानी देती थी। तो वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है, पता है आपको, अब बिल्कुल ही ठीक हो गया है। वजह तो ना आप परेशानी के थे ना, ये डॉक्टर ने खराब कर दिया हुआ। हाँ डॉक्टर ने ख़राब किया है। डॉक्टर ने हाँ हम डॉक्टर को पकड़ के मारेंगे, उसने ऐसे किया ना, मैं डॉक्टर को पकड़ाऊंगा ना, तो आपने पकड़ के डॉक्टर को जूते मारने हैं, ठीक है। जैसे बताया हुआ ये चोर किसने पकड़ा मोबाइल, अपना मोबाइल जगता अलार्म हाँ पता है क्या करना, आपने मेरे लिए दुआ करनी है, मेरा जो मोबाइल चोरी हो गया है ना, वो जल्दी से मिल जाए, ठीक है। फिर हम सीधा कहाँ चलेंगे? कहीं नहीं जाना। वो घूमने नहीं जाना आपने? अपने अबू को छोड़ दिया था, बोला क्या कहा, कुछ कह दिया था, मैं गाल करा। अच्छा ये बात है, अब्बू को मतलब कि अच्छा अब्बू जब आएगा फिर तो चलेंगे ना। जिसने अबू लिए कब्र पटनी है, जिसने अबू नहीं कब्र में है ही नहीं अब्बू, वो तो ऐसे रखा हुआ मिट्टी हम सीधे करके आए थे। वो अब्बू जो है ना जन्नत चले गए हैं, वो जन्नत गए हैं। तो आपने बोला था ना कि अब्बू को कॉल करो, मैंने कॉल की थी अब्बू को, मैंने बोले कि मैं ठीक हूँ। वो अब्बू ने टच मोबाइल ले लिया है, पता है आपको, वो बड़ा मोबाइल टच मोबाइल ले लिया है। तो मोबाइल ही खराब कर देना है। हाँ पाकिस्तान वाले, कहती है पाकिस्तान वाले एक तो मोबाइल ही ख़राब कर देते हैं। वो मोबाइल अब्बू का ख़राब है ना, उसके ऊपर अब्बू के वो बाजू लगा था, पता नहीं क्या स्क्रीन उसकी टूट गई थी, काली हो गई है। तो वही कहती है कि पाकिस्तान वाले मोबाइल भी ख़राब कर देते हैं, मतलब ख़राब देते हैं। कोई नहीं हम नया ले लेंगे, सही है। अपने भाई को अबू को कैसी बात बते, अबू जा कहता अबू तो पाल के नाश में आप बुलाए तक कबर की उठा सकते। हाँ कुछ नहीं आप टेंशन ना लो, सबको ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैं अपने गाल बताया ना। हाँ इसने किता बीमार किता अल्लाह से, जिसने भाई हाथ वो अल्लाह पाक ने बीमार किया था ना, तो अब तो फिर अल्लाह पाक ने उसको ठीक कर दिया है। आप पता क्या करो, मेरी बात सुनो, आप ना अंदर चलो, इधर बाहर सर्दी है, ठीक है। फिर आख्या वो देखो आपकी भाभी जो है ना, वो देखो वो उठा के आई है, अंदर चलो सर्दी है बाहर, शाबाश चलो चलें जी, ये अंदर रख लो ये जी हाँ। पहले ना अबू ये देखा था, पाँच सर की थी प्यार। अच्छा ऐसे सोया हुआ था। अबू मैं क्या अबू किधर घर नहीं आ सकता। फिर उधर डॉक्टर को चलता रहता, डॉक्टर को कह देता कि दवाई तो खा दिया के वो दवाई एक तो डॉक्टर ने बोतल लगाई के
अपनी तबीयत सही नहीं रही। हाँ ठीक है, आप चलो अंदर। वो देखो मासियाँ अंदर बैठी हैं, वो देखो सारी दोनों मासी अंदर हैं, अम्मी अंदर है। आप चलो अंदर, बाहर सर्दी है। चलिए जी, वो क्लिप जो है ना थोड़ा लंबा हो चुका है, इसकी बातें अगर मैं करता रहा तो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह बाद में फिर देखता हूँ, वीडियो अगर पूरी हो गई तो बंद कर दूँगा, फिर आगे देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। तो वापस आ गए हैं, दूसरे मतलब के दिन हो गया है रात को बनाते बनाते, और सुबह सुबह जो है ना मेरी सरदार जो है ना, ये मेरी सरदार मेरी सोनी सरदार, वो इधर पापड़ वाला पता नहीं कोई चीज़ बेचने वाला आ गया है। तो पहले ये चला जाए फिर मैं बात करता हूँ। आ गया हूँ मैं, ऊपर सब बैठे हुए हैं और बात वही मोबाइल चोर की हो रही है। बार बार मोबाइल चोरी किसने किया, कौन है मोबाइल चोरी करने वाला, और अभी तक क्या पता चला है, ये सब तफसील बताते हैं। जो मतलब बातें भी हो रही हैं, बहुत सारी ऐसे कह रहे हैं कि हाँ जी फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ बंदा है, एक दूसरे के ऊपर शक किए जा रहे हैं। लेकिन असल जो हकीकत है वो इस तरह है कि अभी हमने यानी ट्रेस पे मोबाइल लगाए हुए हैं, पुलिस कंप्लेन भी की हुई है, लेकिन हमारे जो भी इधर आए हुए थे आपस में एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। तो मैंने यही साहब को बोला है कि मैंने कहा यार सब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, इस तरह क्या फ़ायदा मिलेगा। मतलब कोई मुझ पे इल्ज़ाम लगाए, गुलाम बास पे लगाए, मोहसिन पे, मौलवी पे, अलीपुर वालों पे, किसी पे भी हम इल्ज़ाम लगाएं, इस तरह तो काम नहीं बनेगा ना, कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो मैंने कहा आज जो है ना इसका फ़ाइनल करते हैं। आज हमने जाना है नामा निकलवाने, तो आज नामा निकलवाएंगे। एक जगह से निकलवाया है, उसका मुझे मतलब कि यकीन नहीं आ रहा कि वो इस तरह हो सकता है, लेकिन मज़ीद जो है ना आज हम जा रहे हैं, 3-4 लोग और भी हैं जहाँ से हमने नामा निकलवाना है। तो इंशाल्लाह आज सब के पास जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना मोहसिन भी रेडी, आप रेडी हो? मौलवी रेडी हो? हाँ जी, हाँ ये रेडी हैं। तो भाई आप घर रहें, तो बाकी जो है ना हम जाते हैं आज, वो नामा भी निकलवाते हैं कि किसने उठाया है, कौन है वो चोर, तो वो भी पता चल जाएगा। कहते हैं कि नामे से जो कर सकते हैं हम अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं। हाँ भी लगे हुए हैं मोबाइल, वो भी अपनी जगह पे मतलब हो रहा है। हाँ, तो बाकी ये दूसरा जो नामे वाला है ये भी करा लेते हैं, 2-3 जगहों से करा लेते हैं। हाँ एक जगह से ना वो इस तरह नहीं होता ना कन्फर्म, एक जगह से मैंने कहा से करवाओगे ना, हाँ तो सेम बताएगा तो फिर यकीन आ जाएगा। हाँ, जो मतलब कि सब से 2-3 जगह पे होगा तो बताएंगे कि एक ही बंदे का बताएंगे, तो फिर हम उस बंदे को पकड़ेंगे। अभी जो है ना ये इस तरह भी है कि हम जिन के पास जाएंगे वो ना हमारे कोई रिश्तेदार हैं, ना कुछ हम जानते भी नहीं है हमारे किसी। हाँ वो सेल्समैन हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा है कि यार कोई नावा निकालने वाला हो, तो उन्होंने जगह बताई है। 1-2 बंदे हैं उधर, उन्होंने बोला है कि कुछ लेडीज़ भी निकालती हैं और 1-2 मर्द भी हैं, तो वो जो है ना कहते हैं कि उधर से पता करवाओ, तो वहाँ जाएंगे। फिर अभी बस ये सब रेडी हो रहे हैं। सलमा को भी मैंने बोला है कि आप भी साथ चलो, अगर लेडीज़ होंगी तो चलो सलमा खुद जाएगी, उनसे बात करेगी, हम तो नहीं कर सकते। करती हैं ये काम तो फिर लेडीज़ के साथ हाँ सलमा साथ होगी, वो कोई मर्द होगा तो फिर मैं खुद होऊंगा उधर जा कर ना, उनसे फिर ये करते हैं बात, और पता भी चल जाएगा कि कौन है। बार बार एक ही का आएगा तो समझे कि वही बंदा है, तो फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी। अगर अलग अलग से आते हैं तो फिर तो क्या पता फिर क्या होगा आगे, वो फिर बाद में देखेंगे। नहीं तो फाइनली फिर इस तरह करेंगे, जो बंदे हमारे उस वक्त थे इधर घर में सबको फिर पुलिस के हवाले करते हैं, फिर पुलिस वाले जाने वो फिर खुद ही पूछताछ करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले ने मुझे बोला कि वो बंदे हमें दे दो जो भी हैं, या हम आते हैं उनको ले जाते हैं, फिर पता चल जाएगा। वो हम कहते हैं कि हम देख लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। तो वो ये भी कहते हैं कि जिनके ऊपर शक हो हमें वो बंदे दे दो या उनके नाम बता दो। मैंने कहा ऐसे शक की बिना पे मैं मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मोहसिन के ऊपर मुझे शक है, तो वो इसको पकड़ के ले जाएं और इससे बात करते रहें, ये तो फिर यही बोलेगा कि मेरे पास नहीं है। ये फिर जब कहते हैं कि मार पड़ती है ना तो फिर बंदा सीधा हो जाता है। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि पहले शक की बिना पे किसी को नहीं मैं करते। शक की बिना पर तो हम किसी को नहीं कह सकते। हाँ सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, फलां चोर है, फलां चोर है, फलां है, ये है।
तो इस तरह हम किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे जब तक कोई सबूत न मिले। हाँ, क्योंकि ये दिल आज़ारियाँ होती है कि अब मैं किसी जो ना हो मुजरिम मैं उसको पकड़वा लूँ और वो बेचारा मुझे दुआएं थोड़ी देगा, वो तो मुझे बद दुआएं देगा। अपने आखिरकार अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। हाँ किसी को ऐसे नाजायज़ या ऐसे कर लें हम शक की बुनियाद पे हाँ अरेस्ट करवा दें या ऐसे उससे ले लें सब चीज़ें ज़बरदस्ती तरीके से सिर्फ शक की बुनियाद पर, हाँ जी, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। हमने भी अल्लाह के आगे पेश होना है। बेशक यही चीज़ है ना कि हम अब किसी के ऊपर भी ऐसे हम इल्ज़ाम तराशी कर दें कि अभी जो मतलब बातें हो रही हैं, कोई कॉलों पे बता रहा है, कॉलों पे एक दूसरे को बता रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं, कोई वीडियो लगा रहे हैं, कुछ भी चोर पकड़ा गया, ये खाली ऐसे बातें हो रही हैं। मतलब अभी क्योंकि मेन तो मैं हूँ, मैंने पता करवाना है ना, मैं करवा रहा हूँ, सबसे पूछ भी रहा हूँ और पुलिस के हिसाब से भी, कानूनी हिसाब से भी, और आज नामा भी निकलवाऊँगा। तो अभी तक ये नहीं कि चोर पकड़ा गया जैसे लिख रहे हैं, कोई भी मतलब लिख रहा हो या कोई बता रहा हो कि चोर जी फलां बंदा है, चोर पकड़ा गया है, इस तरह कोई सीन नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है अभी तक। तो शक वाले हैं, मतलब एक दूसरे के शक कर रहे हैं, या फिर जो नामा निकलवाया है वो एक बंदे का निकला है, वो उसका भी मैं फिर बाद में बताऊंगा। पहले ये मैं नामे का निकलवा लूँ, एक का है, अभी मैं 2-4 लोगों से और से भी नामा निकलवाता हूँ, वहाँ से निकलवा लूँगा, फिर पता चल जाएगा कि एक ही बंदा है या अलग अलग है। फिर मैं वीडियो में भी बताऊंगा कि वो बंदा कौन है। और मेन बात ये भी है कि हमारे अलावा हाँ कोई भी इस टॉपिक पर जो है ना बात नहीं कर, मतलब बात तो कर रहे हैं, काम कोई भी नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि हमारी ये जिम्मेवारी है, हमारे घर ऐसा हुआ है ना, तो हम इसके बारे में जो है ना कदम उठा हम रहे खुद हैं, छानबीन कर रहे हैं ना इसके ऊपर। ऐसे तो बाकी वही बात, बस वो बातें ही कर रहे हैं। हाँ, बातें करने से कुछ नहीं होता। ऐसे किसी के इल्ज़ाम तराशियाँ, ये वो हो गया जी, फलां पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, फलां बंदा चोर है, ये है वो है, ये अच्छी बात नहीं है। हम बातें तो हम भी कर सकते थे, डेली वीडियो में बता देते जी आज हमें इस पे शक है, उस पे शक है, उस पे शक है। हम किसी के बारे में नाम ले भी नहीं रहे हैं कि हमें किस पे शक है। हाँ, हमें किसी पे भी शक नहीं है जब तक ये सबूत नहीं मिलते। नहीं, कार्रवाई शक के बिना हमारा राइट बनता है, हम किसी पे भी शक कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे रिश्तेदार हैं या ये है वो है, क्योंकि हमारा राइट बनता है। हमारे घर से चोरी हुई है तो हम किसी पे भी शक कर सकते हैं। बनता है, लेकिन हम इसलिए नहीं, हाँ, शो नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि हम जो कोशिश कर रहे हैं सच्चाई तक पहुंचने की, हाँ, झूठी बातें हम नहीं फैला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी जो है ना, मैं वैसे भी मेरी वीडियो आप सब देख रहे होंगे कि मैं बार बार यही के बातें कर रहा था। मतलब मैं अपनी टेंशन में था, ये बात वही आ जाती है कि मेरा बाप मरा है और मुझे उसकी तकलीफ़, उसकी टेंशन, और साथ में लोगों के मुझे बातें मुझे सुननी पड़ रही हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इस तरह तो दुख होता है यार। मैं कोई ऐसे थोड़ी बचौक करके बैठा थोड़ी हूँ, मैं भी छानबीन कर रहा हूँ, मैं भी पता करवा रहा हूँ, अपने काम भी साथ साथ कर रहा हूँ और वो भी साथ साथ करवा रहा हूँ। तो अभी ऐसे मौके पे मतलब बंदे का खुद का भी दिमाग नहीं काम करता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मशवरे कर करके अभी जो है ना, हम यही है कि बाकी काम जो मेरे वो भी होते रहेंगे। अभी आज जो है ना जा रहे हैं फिर नामा निकलवाने, और सलमा भी रेडी हो चुकी है। हाँ, रेडी हो आप, चलें फिर। हाँ, ये भी रेडी हो के आ गई है, तो अभी जो है ना चलते हैं फिर। बाकी भाई और भाभी, अम्मी, फूफो ये तो घर होंगे, तो हम जो है ना वो 2 और 3-4 बंदे हैं जो नामा निकालते हैं, उन सब से जाके पता करते हैं। हाँ, तो वो पता चल जाएगा कि मेन कौन बंदा है। फिर उसके बाद हम, कुछ नहीं होगा। हाँ, जिस वो यही बातें, मतलब बातें यही आ रही हैं कि हाँ जी ये तो इनको टेंशन नहीं है, ये भी घर बैठे हुए हैं, इनको कोई। अमीना 1 मिनट रख दो, इसको धूप पे बिठा दो। भाई का तो 10-15 हज़ार का मोबाइल है, 10-15 हज़ार ये दिहाड़ी कमाता है, इसको टेंशन नहीं है। एक हमारा नहीं था, एक और भी है मोबाइल जो वो छोरा निदोरा है, उसका बाप भी नहीं है, वो देख के इधर से गया है। हमें भी परेशानी है क्योंकि बंदे जो है आ जा रहे हैं, क्योंकि फौतकी वाला घर है, हम इसलिए बैठे। वो कहते हैं बस इनको टेंशन नहीं है, ये चुप करके बैठे, ऐसे बैठे कि ये देखो ना कि आप लोग, मैं क्यों भाई को बोलता हूँ कि भाई आप इधर बैठो, सारे काम मैं कर रहा हूँ। मैं इसलिए तो ये मौसम मेरे साथ होता है, इससे पूछो कि मैं कहाँ कहाँ पता करा रहा हूँ। और रही बात कि मेरे मोबाइल की 10-15 हज़ार की, 10-15 हज़ार का मोबाइल नहीं था। अभी मेरा पिछला टूटा जो 40 का था, ये जो था ये मैंने 28 का लिया है। ये लेकर आया था
ये के दौर में 10-15 में कौन 10-15 में मोबाइल कोई देता ही नहीं है, ऐसे बातें बस कर रहे हैं, हर किसी की अपनी सोच है। तो मैं वो मोबाइल, मुझे मोबाइल की भी मैं वही बात असल में मेरी वही आ जाती है कि मैं अक्सर यही कहता हूँ कि मुझे सबसे जो बड़ी दुख की बात है, मुझे मोबाइल की कोई टेंशन नहीं है। मोबाइल के अंदर जो मेरे अब्बू की डाटा था, वो सब बातें थी मेरे सबसे, मेरी मैं कहता हूँ सारी दुनिया बेच दो मुझे वो चीज़, मुझे वो मेरा डाटा दे दो। तो यही चीज़ है कि मेरे लिए वो तो सबसे महंगी थी। किसी के भी जितना भी नुकसान है, मैं तो यही कहूँगा कि मेरे नुकसान से किसी का नुकसान बढ़कर नहीं है। तो अब्बू का वो सारा डाटा उसमें था, मुझे तो उसी चीज़ की टेंशन है। मैं कहता हूँ कि वो मुझे मेरा डाटा मिल जाए। दूसरा बाकी जो जो नुकसान हुए हैं तो वो तो मिलेंगे इंशाल्लाह। ऐसे रहेगा, चोर एक ना एक दिन पकड़ा तो ज़रूर जाता है, और एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। हाँ भी पकड़ा जाएगा, कोशिश है हमारी सबको जो है ना। जो मैं तो फिर वीडियो लगाऊंगा, फिर मैं नहीं देखूंगा कि कोई मेरा रिश्तेदार है या कोई भी है, चाहे मेरा अपना। मैंने ये भी बोला है, मुझे जो भी जिसका नाम आता है ना, हम इतना व्यस्त करेंगे ना, सोशल मीडिया पे खड़ा के उसकी वीडियो बनाएंगे, उसकी तस्वीर लगाएंगे। यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो फिर मैंने जवाब भी दिया है। मैंने व्हाट्सएप पे भी बातें जो कर रहे हैं उनसे भी मैंने बोला है। मैंने कहा अगर मेरा भाई गुलाम बास भी होगा ना, मैं उसकी भी वीडियो लगाऊंगा और सबको बताऊंगा कि इस मेरे भाई ने उठाया है। ये नहीं कि मैं उधर इंसाफ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ जी वो मेरा भाई है, मैं ऐसी क्यों बात करूँ, क्योंकि इस मौके पर, इस हालात में इस मौके पर ऐसे हालात में जो ऐसी हरकत करता है उसको आगे से पता चले जो आगे क्या करना होता है। हाँ यही चीज़ है ना कि अब फिर बातें ये हो रही हैं कि ये जी चाहे औरत हो, मर्द हो, जो भी हो ना, और हम ये जरूर करें। हाँ, और ये भी बातें हो रही हैं कि हम जी इधर लोग मतलब बोल रहे हैं कि इनके घर गए, नुकसान हो गए हैं इतने लोगों के, तो ये तो जिम्मेदारी इनकी ही थी, मतलब कि ये इनके घर जो गए। मैं उनसे इतना बोलूँगा कि मेरा अब्बू फौत हुआ है, जिसका बाप फौत हो, क्या उसका इतना दिमाग काम करेगा कि वो लोगों की चीज़ों की रखवाली करेगा, या वो अपनी टेंशन में होगा, या उसको अपना पता, जब हमें अपना होश नहीं था, अपना पता नहीं था, तो हम लोगों की चीज़ों का हिफाजत करते। जबकि मैंने अपनी तरफ से मैं कुंडियाँ लगा के सारा कुछ करके मैं सोया था, तो फिर बाद में भी वो कुंडियाँ जो खुलती रहीं, जो भी आते जाते रहे, इसमें भी फिर भी हमारे ऊपर बातें आ रही हैं कि हाँ जी जिम्मेदारी इनकी थी, भी चोरी इनके घर से हुई थी, जिम्मेदारी। फिर भी मैं ये बातें सुन के मैं दिल पे रख के मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बातें मैं बाद में पूछूंगा, अभी जो है ना कोई नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बंदे को पता करा रहा हूँ, ये कर लूँ, उसके बाद फिर देखेंगे। तो अभी जो है ना बातें ज़्यादा लंबी हो गई हैं, वीडियो भी लंबी हो गई है, तो सलमा भी रेडी है। हाँ सलमा चलें फिर, हाँ इस वीडियो का भी फिर एंड कर दो आप, तो फिर नेक्स्ट जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं, वो फिर उधर की होगी जो होगी। फिर सब्जी के जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें तकरीबन इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है कि वो बंदा पता चल जाएगा कि कौन है कौन नहीं, इंशाल्लाह। तो प्यारे बहन भाई, हमारी वीडियो जो ना ये मुकम्मल हो चुकी है। जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन ने बताया है, हम इसलिए चुप बैठे हैं कि उसको चुप कराओ, हम इसलिए चुप बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे। हम कहते हैं जितना कोई बोलता है बोलने दो उनको, एक बार हमें पता चल जाए उसके बाद हम सबको जवाब देंगे। तो बाकी जो है ना अभी इस वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह आगे वाली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें कुछ ना कुछ पता ज़रूर चल जाएगा। तो अभी लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।